السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ سپورٹس بلیٹن میں بات کریں گے کوہ پیمائی کے نئے ریکارڈ کے حوالے سے۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی، اور ابھی رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم کی سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کی شدید مذمت، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ سویڈن حکومت ان واقعات کا بھرپور نوٹس دے، یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ OIC کے فیصلوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کا بیانیہ نفرت اور تفریق کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال۔ IMF سے 9 ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ، جولائی میں $1.1 ارب موصول ہوں گے۔ سعودی عرب نے 2 ارب اور UAE نے $1 ارب دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوست ملکوں سے مالی معاونت لانے میں سپہ سالار کا کردار اہم رہا۔ چین نے $5 ارب رول اوور کر کے آئرن برادر ہونے کا ثبوت دیا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام اور دیر پا فیصلے کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ IMF معاہدے کے بعد کاروباری سرگرمیوں میں زبردست تیزی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 43,899 پر بند۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی، فی تولہ سونا 8,800 روپے سستا۔ وزیر اعظم کی سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی پر قوم اور کاروباری برادری کو مبارکباد۔ مسلسل محنت اور درست پالیسیوں کے نتیجے میں معاشی بحالی کے آثار نمایاں ہونا شروع۔ ملک دوبارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ امید کا نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ قومی ترقی اور معاشی استحکام کے سفر کو اسی جذبے سے جاری رکھنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ملاقات۔ افواج پاکستان کے حوالے سے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی ٹوکیو میں جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدا سے ملاقات۔ مختلف شعبوں میں روابط اور تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ جاپانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں تجارت، سرمایہ کاری، انسانی وسائل کی ترقی، IT، سیاحت اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر زور۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے چین کی ناظم الامور پینگ چنگشو کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے گزشتہ چند ماہ کے دوران چینی مالیاتی اداروں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ پالیسیز لانگ ٹرم کی جائیں، کنسسٹنٹ کی جائیں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو 10 سے 15 سال کا امپیکٹ انالیسس دیکھ کے اس کے مطابق اس کو طے کرنا چاہیے۔ اسٹاک ایکسچینج بیٹر پرفارم کریں گی، روپی اپریشیٹ ہوگا۔ Yes, this was the need of the hour. ہمیں پالیسیز صحیح کرنی ہے۔ چارٹ آف اکانومی ہونا چاہیے بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز۔ IMF کی یہ جو ٹرینڈ ہمیں آ رہی ہے، یقیناً ہمیں اس بحران سے نکلنے میں بڑی مددگار ہوگی۔ IMF معاہدے کے حوالے سے حکومتی ویژن کی ہر سطح پر پذیرائی۔ معیشت کی بہتری کے لیے امید کی کرن قرار۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ تاجروں اور صنعت کاروں کا حکومتی اقدامات پر اظہار اطمینان۔ شہداء ہمارا فخر۔ بلوچستان کے علاقے حشاب میں شہید ہونے والے میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے اعلیٰ افسران سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شہداء کا مقدس خون قوم پر قرض ہے۔ میجر ثاقب حسین سمیت 6 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر پوری قوم رنجیدہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ مسیحی اور سکھ برادری کے رہنماؤں کا جناح ہاؤس کا دورہ۔ 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کی شدید مذمت۔ عسکری تنصیبات پر حملہ اور ملکی تشخص خراب کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ 9 مئی کے واقعے میں ملوث شرپسند عمر فاروق کے والد کا بیان۔ اپنے بیٹے کی حرکت پر شدید شرمساری کا اظہار۔ تخریب کاری کی شدید مذمت۔ پاکستان اور پاک فوج ہماری ریڈ لائن اور فخر ہیں۔
कोहलू बलूचिस्तान में शहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली। कबायली अमायतीन, शहदा के वरसा और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर की फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। अमन की खातिर वतन के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत ने अमरनाथ यात्रा को फौजी यात्रा में तब्दील कर दिया। हजारों की तादाद में इजाफी नफरी तैनात। सिक्योरिटी के नाम पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाइयां। कश्मीरी आवाम की जिंदगी अजीरन। भारतीय फौज में डिसिप्लिन की बिगड़ती सूरत हाल, कहीं करप्शन, कहीं जिनसी जराइम तो कहीं बदसलूकी। गिरता मोराल, कम तनख्वाहें और अफसरान का नौजवानों के साथ हतकामेज रवैया। गुज़िश्ता बरस 537 कोर्ट मार्शल और 6000 से ज़ायद डिसिप्लिन की वाक़यात। निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राएली फौज की रियासती दहशतगर्दी। जनीन और रमल्ला में सिहोनी फोर्सेस के हमले। 9 फलस्तीनी शहीद, 50 से ज्यादा जख्मी। शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी सदर ने इसराइल की जारहाना कार्रवाई को जंगी जराइम करार दे दिया। इस्लामी ताउन तंजीम, अरब लीग, उर्दन और ईरान की इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मुल्क भर में मानसून का आगाज। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ते पोठोहार और बालाई पंजाब में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बारिश का ये सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। कोह पैमाई की दुनिया में नई तारीख रकम। 8 साल इरहान शेखरी और 12 साल दानिश सदपारा ने खुसरगंग चोटी सर कर ली। 19,365 फुट बुलंद खुसरगंग सर करने वाले कम उम्र तरीन कोह पैमा बन गए। और थाईलैंड में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। पाकिस्तानी बच्चों की शानदार कारकर्दगी। मजमूई तौर पर 28 तमगे जीत लिए। पाकिस्तान ने 4 सोने, 6 चांदी और 18 कांसी के तमगे अपने नाम किए। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के साथ 9 माह के स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर मिलेंगे। रवा माह 1.1 अरब डॉलर मौसूल होगा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से माली मुआवनत पर मशकूर हैं। विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती की शदीद मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान इस शरंगेज वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कि OIC के फैसले की भरपूर तायद करता है। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामोफोबिया का बयानिया नफरत और तफरीक का बायस बन रहा है। पाकिस्तान स्वीडिश हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो इस बयानिया का नोटिस ले। स्वीडन में जो वहाँ पर एक बयानिया जो बनाया गया है नफरत का और तफरीक का, उसको पाकिस्तान की हुकूमत उसकी मजम्मत करती है। OIC इजलास में इस कभी हरकत की भरपूर मजम्मत की गई और मुतालबा किया गया कि न सिर्फ मुजरमों के ख़िलाफ़ भरपूर तादीबी कार्रवाई की जाए बल्कि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत OIC के इस इजलास और इस फैसले की भरपूर तायद करती है। IMF के साथ होने वाले स्टैंड बाय मुआहदे पर वज़ीर ख़ज़ाना और उनकी टीम समेत तमाम मुतल्लका वज़ारतों और काबीना अरकान को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और IMF की MD का शुक्रिया अदा किया। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। 3 अरब डॉलर इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में 1.1 बिलियन डॉलर की होगी। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का और उनकी टीम का अपनी तरफ से और अपनी काबीना की तरफ से उनका
दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने एक दोस्त की हैसियत से हमारे मुश्किल वक्त में जो किरदार अदा किया, इसका अल्फाज में शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं। ब्रादर मुल्क सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से माली मुआवनत के हुसूल में सिपहसालार का कलीदी किरदार रहा। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, तकरीबन $5 अरब के जो रोल ओवर्स हुए हैं सॉवरन लोन्स के और कमर्शियल लोन्स के, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने और यूएई से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी, हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब का कलीदी रोल उनका। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें खुद इन्हसारी की मंजिल के हसूल की जानिब बढ़ना है। अगर टीम वर्क की शक्ल में हिकमत अमली और विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी जरूर हमारे कदम चूमेगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना ने हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023, विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए आर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2023, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 2023 में भी तरमीम की उसूली मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना को IMF के साथ $3 अरब के मुआहदे के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम दोस्त ममालिक बशमूल चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और MD IMF के मशकूर हैं, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान माशी गर्दाब से निकलने में कामयाब हुआ। इस दौरान वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का भरपूर निज़ाम लाया जाए। इजलास में वजारत तिजारत की सिफारिश पर अफगानिस्तान में खुराक की फराहमी के ऑपरेशन को जारी रखने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की एक कंटेनर की पाकिस्तान के रास्ते कराची से काबुल तक ट्रांजिट की भी इजाजत दी गई। काबीना ने वजारत बराए वफाकी तालीम और पेशेवराना तरबियत की सिफारिश पर 3 तरमीमी बिलों की भी मंजूरी दी, जिनमें हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2023, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 2002 में तरमीम की भी असूली मंजूरी दी गई। वफाकी काबीना को इस्लामाबाद में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना को आगाह किया गया कि इस मंसूबे के तहत 2 किस्म के लाए अमल तश्कील दिए गए हैं। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बिल को काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस में भेजने और प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज रेगुलेटरी बिल 2023 को CCLC में भेजने की असूली मंजूरी दी। इस बिल के तहत सिक्योरिटी के निजाम की बाज़ाब्ता निगरानी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने के लिए कानून साजी की भी असूली मंजूरी दी और हिदायत की कि वजारत तिजारत की मुशावरत के बाद कानून साजी का मुसव्वदा CCLC भिजवाया जाए। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने मुलाकात की। मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पेशा वराना उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर बराए इंसानी हुकूक रियाज हुसैन पीरज़ादा ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत वजारत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर गैर मामूली इजाफे पर कौम और कारोबारी बिरादरी को मुबारकबाद दी है। हमारी मुसलसल मेहनत और दुरुस्त पॉलिसीज़ के नतीजे में माशी बहाली के आसार नुमायां होना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने माशी तरक्की, महंगाई में कमी और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सफ़र जहाँ छोड़ा था वहीं से फिर आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 2446 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,899 पर बंद हुआ। मज़ीद तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। मार्केट का आगाज ही 2231 पॉइंट्स के इजाफे के साथ हुआ। आगाज में ही मार्केट में 5% इजाफा देखा गया और कवायद के मुताबिक मार्केट को 1 घंटे तक मुअत्तल किया गया ताकि मार्केट में इस्तेकाम रहे। ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहली मर्तबा है कि इजाफे की वजह से मार्केट में लॉक लगाया गया।
मार्केट के दोबारा आगाज में भी तेजी देखी गई और मार्केट 2450 पॉइंट के इजाफे तक पहुंच गई। ये डील हमारा स्टार्टर है, तो स्टार्टर एपिटाइजर जिसको बोलते हैं, तो एपिटाइजर्स के बाद जो मेन मील आएगा वो आपको अगले 1 साल के लिए आपकी इकोनॉमी की सिमत बताएगा। IMF के मुआहदे ने पाकिस्तान की मईशत को न सिर्फ दिवालिया होने से बचा लिया बल्कि मुआशी इस्तेकाम के लिए भी राह हमवार कर दी है। $3 अरब के मुआहदे से पाकिस्तान में डॉलर और रुपए के दरमियान फर्क में कमी होना शुरू हो गई है। माहिरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट में तेजी का ये सिलसिला आने वाले दिनों तक जारी रहेगा। IMF के प्रोग्राम में गए हैं तो उसका फौरी रिएक्शन आपने देखा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफॉल्ट के खतरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हुए। अब दोस्त ममालिक पाकिस्तान में इन्फ्लोज लेकर आएंगे। हमारा जो मेन खतरा था डिफॉल्ट का वो टल गया है। अब हमें कोशिश यही चाहिए हुकूमत को, जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि आइंदा जो है पाकिस्तान को थोड़ा ग्रो करना चाहिए, जो एक एक्सपोर्ट को बढ़ा के डॉलर को डिवैल्यूट करके और दूसरी चीज़ें जितनी मजीद से इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, तो ये मजीद कुछ डिसीजंस लेंगे तो फिर इकोनॉमी बेहतर होगी। हुकूमत और IMF के दरमियान $3 अरब के मुआहदे के बाद मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होगा, जिससे सरमायाकारी में भी इजाफा देखा जाएगा। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसियों के तसलसल को बरकरार रखे तो आने वाले दिनों में पायदार बुनियादों पर मुआशी इस्तेकाम होगा। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क में महंगाई की शरह 29.4% पर है, जबकि मई में यही शरह 38% थी। वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में कहा कि आज 1 बजे तक 100 इंडेक्स में 2334 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा कि ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी बेहतरी देखी जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार से चीन के सफारतखाने की नाज़िमुल उमूर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान पाकिस्तान के साथ चीनी मालियाती इदारों के ताउन पर भी शुक्रिया अदा किया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत खरीद 285 रुपये 7 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 286 रुपये 5 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 283 रुपये जबकि कीमत फरोख्त 287 रुपये रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब सोने की कीमत में भी बड़ी कमी वाक़ई हुई है। सोने की फ़ी तोला कीमत 8,800 रुपये कमी के बाद 2,07,200 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 7,544 रुपये कमी के साथ कीमत 1,77,641 रुपये रिकॉर्ड की गई। और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के मुस्बत असरात अवाम तक मुंतकिल होना शुरू हो गए। स्टॉक मार्केट में तेज़ी, रुपए की कदर में इजाफा और सोने की कीमत में कमी सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी का मुंह बोलता सबूत है। मुकद्दस नाज़रीन को IMF मुआहदे और माशी सरगर्मियों के हवाले से आगाह कीजिएगा। IMF की टीम के साथ स्टाफ लेवल पर स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मुआहिदा मुल्क की मईशत को ठोस बुनियादों पर इस्तवार करने में अहम संग मील साबित होगा। IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 12 जुलाई को आलमी मालियाती इदारे के बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को अगले 9 माह में IMF से $3 अरब मिलेंगे। इस रकम से जहां पाकिस्तान का बैरूनी शोबा मजबूत होगा, वहीं दीगर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को पाकिस्तान में अपनी मालकारी बढ़ाने में तरगीब भी मिलेगी। जो जिन हालात में इस गवर्नमेंट ने डील की है, मैं बिल्कुल खराज तहसीन दूंगा इस गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने ख़ास तौर पर बड़े परसिस्टेंट रहे और IMF की तमाम शराइत को माना और उनको डील बड़ा अच्छा किया और इवेंचुअली इस डील के बड़े मुस्बत जो है हम असरात इंशाअल्लाह देखेंगे आने वाले वक्त में। मुल्की मईशत में मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, तो वहीं पाकिस्तान में बराह रास्त और पोर्टफोलियो दोनों तरह की सरमायाकारी भी बढ़ेगी। एक जानिब रुपए पर दबाव कम होगा, जिससे डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी इजाफा होगा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के एतमाद में बहाली से हिस्सेस की खरीदो फरोख्त बढ़ेगी, जिससे इंडेक्स में भी इजाफा होगा। मैंने पहले भी कहा था कि IMF के साथ जब मुआहदा होगा पाकिस्तान का, तो उससे ज़ाहिर सी बात है लोकल इन्वेस्टर जो है उसके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। और आप देखेंगे जो ही पाकिस्तान का IMF के साथ स्टैंड बाय अरेंजमेंट का मुआहदा हुआ है, तो उसके साथ ही आप देखें आज पहला वर्किंग डे था ईद के बाद, तो डॉलर जो है 280 रुपये पे आके खड़ा हो गया। और साथ साथ जो अभी हमें खबरें मिल रही हैं कि हिसाब डार साहब जब कह रहे हैं कि इसको 272 पे होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि चीज़ें इम्प्रूव आपकी हो रही हैं।
कमोडिटी मार्केट भी IMF मुआहिदे के मुस्बत असरात से मुस्तफीद होगी। रुपए की कदर में इजाफे से सोना चांदी समेत दीगर धातु की कदर में कमी आएगी। डॉलर की कदर में कमी से दरामदी बिल में कमी आएगी, जिससे करंट अकाउंट और तिजारती खसारे में भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अंदरूनी और बैरूनी इस्तेहकाम से मुल्क में महंगाई के दबाव में भी वाज़ेह कमी मुतवक्के है। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान ईशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कराची के सनतकारों और ताजिर बिरादरी ने IMF के साथ मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे माशी सूरत हाल में गैर यकीनी का खात्मा होगा। तफसील बताएंगी नौरीन आसिफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 3 अरब मालियत का स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुआहिदा मैशत की बेहतरी के लिए उम्मीद की किरण है। माहिरीन का कहना है कि इस मुआहिदे से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग हासिल होगा, जबकि मुल्क में महंगाई में भी कमी देखने में आएगी। ताजिर बरादरी ने इस मुआहिदे को खुशाइन करार देते हुए मौजूदा हुकूमत खुसूसन वजीर आजम शहबाज शरीफ की काविशों को सराहा है, जिन्होंने जाती दिलचस्पी लेकर इस मुआहिदे को अमली जामा पहनाया। पॉलिसीज लॉन्ग टर्म की जाएं, कंसिस्टेंट की जाएं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है रियल स्टेट से मुतालिक, या ऐसी आ जाती है CNG से मुतालिक, या किसी और पॉलिसी के मुताबिक, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को 10 से 15 साल का इम्पैक्ट एनालिसिस देख के उसके मुताबिक उसको तय करना चाहिए। और इससे मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस उनका किसी हद तक बहाल होगा, स्टॉक एक्सचेंज बेटर परफॉर्म करेंगी, रुपये अप्रिशिएट होगा। सनतकारों का कहना है कि इस मुआहदे के बाद डॉलर की कदर में भी खातिर ख्वाह कमी आएगी, जिसकी वजह से जहां एक तरफ मुल्क के वाजिबुल अदा कर्जों के हुजम में कमी वाक़ होगी, वहीं दूसरी जानिब कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। Yes, this was the need of the hour. बट इसके साथ साथ हमें, जो मैंने कहा कि हमें पॉलिसी सही करनी है, चार्टर फॉर इकोनॉमी होना चाहिए बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़, कि अगर एक पार्टी कोई इनिशिएटिव लेती है, अगर मुल्क के मफाद में है, तो फिर वो उसको शेल्फ नहीं करना होगा कि आप आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। IMF की ये जो ट्रेंच हमें आ रही है, यकीनन हमें इस बहरान से निकलने में बड़ी मददगार होगी, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें सिस्टम को ऐसा करना चाहिए कि हम किसी की तरफ देखें नहीं, हर आदमी जो है वो डायरेक्टली टैक्स कंट्रीब्यूटर हो, उस सिलसिले में जो भी रिफॉर्म्स ली जाएँ वो टैक्स फ्रेंडली हो। मौजूदा हुकूमत ने IMF के साथ कामयाब मुआहदे करके मुल्क के दिवालिया होने के बयानिए को खत्म कर दिया है और मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल कर बेहतरी की जानिब गामजन कर दिया है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
لاہور کی تاجر برادری نے IMF کے ساتھ $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کو معاشی بحالی کی طرف اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں صادق بلوچ۔ موجودہ حکومت کی طرف سے مشکل معاشی حالات سے نکلنے، ادائیگیوں کے عدم توازن، کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے سمیت معاشی میدان میں بہتری لانے کے لیے کئی مشکل فیصلے کیے گئے۔ IMF پروگرام کی بحالی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کا مقصد ملکی معیشت کو درست سمت کی طرف لے جانا ہے۔ $3 ارب کے سٹینڈ بائی معاہدے کو مشکل مگر پاکستانی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے پاکستانی معیشت کو استحکام ملنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بھی بہتر ہوگی۔ آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی کئی پوائنٹس کی بہتری ہوئی اور جو روپیہ ہے ہمارا وہ بھی $5 سے اپریشیٹ کیا، تو IMF کے ایگریمنٹ کے بعد جتنے بھی امپیکٹس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی روپیہ اور اپریشیٹ کرے گا اور $15 سے $20 اور اس میں بہتری آئے گی۔ الٹیمیٹلی انفلیشن بھی بہتر ہوگی، انٹرسٹ ریٹ بھی بہتر ہوگا، اور جیسی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری کم ہوگی تو ہماری جو انڈسٹری ہے، ہماری ٹریڈنگ ہے وہ انکریج ہوگی اور اکانومی رائٹ پاتھ کے اوپر آئے گی۔ تاجروں کے مطابق اس معاہدے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا اور ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر زبردست تیزی بھی مثبت معاشی اشارہ ہے۔ آج پہلا دن تھا، ورکنگ ڈے تھا، اور آج ہی جو ہے وہ جمپ کیا، جو سٹارٹ کیا ہمارے اسٹاک ایکسچینج نے۔ اسٹاک مارکیٹ کی بہتری ہی دیکھیں گے اور روز نیا سے نیا ریکارڈ بنے گا۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو اقتصادی شعبے اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات، ٹیکس وصولی میں اضافہ، سماجی ترقی اور دیگر اقدامات کے ساتھ ساتھ مؤثر گورننس پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ صادق بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ خیبر پختونخوا کی تاجر برادری نے بھی IMF معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد سجاد۔ خیبر پختونخوا کی تاجر برادری نے پاکستان اور IMF کے مابین ہونے والے معاہدے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کو دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا کیا۔ معیشت کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آلریڈی ہماری معیشت جو ہے وہ ڈاؤن فلو پہ تھی، تو انشاءاللہ جس طرح یہ قسط آ جائے گی تو اس کے ساتھ معیشت بھی بڑھ جائے گی۔ اس پیکیج سے ہمیں جو ریلیف ملے گا اس سے ہم مزید فائدہ لیں گے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے مثبت اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ معاہدہ ہونے کے پہلے روز ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کو نہ صرف بریک لگ گئی بلکہ اس میں کمی ہوئی، ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی ہے۔ معاہدے کے مزید مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے IMF کا یہ بہت اچھا ہے، یہ ملک پہ اچھے اثرات پڑے گے۔ ماہرین معاشیات کے مطابق حکومت، بیوروکریسی اور تاجر برادری کو اس معاہدے سے مستفید ہو کر مل کر ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ محمد سجاد، PTV نیوز، پشاور۔ ملتان کے صنعت کاروں اور تاجروں نے بھی کہا ہے کہ IMF کے ساتھ نئے معاہدے سے ملکی معیشت مستحکم اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ خواجہ محمد کلیم کی رپورٹ۔ گزشتہ حکومت کی طرف سے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی نے نہ صرف ملکی معیشت کو شدید متاثر کیا بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہوئی۔ صوبہ پنجاب کے جنوبی اضلاع کے صنعت کاروں اور تاجروں کا کہنا ہے کہ ان حالات میں IMF کے ساتھ تعلقات کی بحالی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس وقت اکنامی جو ہماری اس وقت ڈسٹرب ہے اس کے اوپر کوئی چارٹر آف اکانومی ہم سب کے ساتھ مل کے سائن کریں، ساری پارٹیز کے ساتھ۔ وہ ایکٹیویٹیز جو کہ کیش ڈراؤٹ سے پہلے ہمارا ملک انجوائے کر رہا تھا، ہم وہ دوبارہ ریگین کر سکتے ہیں۔ اس سے تجربہ کار حکومت اس وقت ہمارے پاس نہیں آ سکتی، ہمیں امداد پر نہیں رہنا، ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کرنا ہے۔ کاروباری طبقے کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کوششوں سے ہونے والے معاہدے کے بعد روپے کی قدر میں مصنوعی گراوٹ رکنے اور روپے کی قدر میں اضافے کے قوی امکانات ہیں۔ جو اثرات ہیں وہ اوپن مارکیٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 10% کے قریب ہماری کرنسی کی ویلیو بہتر ہوگی۔ IMF کے ساتھ $3 ارب کے معاہدے سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا، جس سے معاشی بحالی کے عمل کو تقویت ملے گی۔ خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کا 23واں اجلاس کل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ویڈیو کانفرنس فارمیٹ میں ہونے والے کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں شرکت کی دعوت بھارتی وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کے موجودہ سربراہ کی حیثیت سے دی ہے۔ اجلاس کے دوران رہنما اہم عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال
اور SCO کے رکن ملکوں کے درمیان مستقبل میں تعاون کے لائحہ عمل پر غور کریں گے۔ اجلاس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی شرکت اس بات کی غماز ہے کہ پاکستان SCO فورم کو علاقائی سلامتی اور خوشحالی اور خطے میں روابط کے فروغ کے حوالے سے انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ اس سال شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان کی کونسل ایران کے نئے رکن کے طور پر شمولیت کا خیر مقدم بھی کرے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹوکیو میں جاپان کے وزیراعظم فومیو کشیڈا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں روابط اور تعاون کو مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاکستان اور جاپان نے تجارت، سرمایہ کاری، انسانی وسائل کی ترقی، IT، سیاحت اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹوکیو میں جاپان کے ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمسی توانائی کے استعمال، کھارے پانی کو میٹھا کرنے اور پانی کو صاف کرنے کے شعبوں میں مل کر کام کرنے اور مشترکہ سرمایہ کاری پر بات چیت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں نے جاپانی زبان کے لیے پاکستان میں لینگویج اسکل اسیسمنٹ ٹیسٹ کی سہولت دینے پر بھی اتفاق کیا ہے، جس سے ہنرمند افرادی قوت کے تبادلے میں سہولت ملے گی۔ Two countries can further deepen our bilateral cooperation. We have agreed to further deepen and exchange our mutually beneficial bilateral cooperations in the area of trade, investment, human resource development, and exchange, IT, tourism, and agriculture. We have also jointly agreed to explore the possibility of working together on targeted programs with higher impact in the domains of solarization, desalinization, and water purification, and housing and infrastructure rebuilding flood-affected areas in Pakistan. During my visit, I will also interact with the private sector, the local media, as well as think tanks to further broaden our engagement. I believe that both sides need to stay engaged at all levels to further positive dialogue and continue exploring more avenues of cooperation. اس سے قبل وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور جاپان کے ہم منصب یوشی ماسا ہیاشی کے درمیان ٹوکیو میں ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان کے اضلاع چرانی اور کیچ میں میجر ثاقب حسین سمیت 6 سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کا مقدس خون قوم پر قرض ہے، سیکورٹی اہلکاروں کی شہادت پر پوری قوم رنجیدہ ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ قوم کے بہادر بیٹوں کی قربانیوں کی ہی بدولت پاکستان میں امن و سلامتی ہے۔ ہماری افواج کے جرری جوان اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف آہنی دیوار ہیں۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے امن اور اس کی ترقی و خوشحالی کو مقدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تمام قوتیں جو بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا قومی عزم غیر متزلزل ہے۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں شہید ہونے والے سانگھڑ کے 31 سالہ میجر ثاقب شہید اور دادو کے نائک باقر علی کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہداء کی نماز جنازہ تربت اور بارضا ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں اعلیٰ حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران، جوانوں، شہداء کے عزیز و اقارب اور لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج مادر وطن کی ہر قیمت پر دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ شہداء پاک سرزمین کو سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ نور اللہ نے 8 مئی کو دہشت گردوں کے خلاف دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد کا کہنا ہے کہ نور اللہ شہید نے بلوچستان والوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ السلام علیکم۔ نور اللہ شہید نے 30 مارچ 2022 کو PMA کابل سے پاس آؤٹ ہوئے اور ان کی پہلی پوسٹنگ ہارڈ ایریے کے اندر جو کشمیر کا آخری کونا ہے تھاؤبرٹ سے ان کی جو پوسٹ ہے وہ 13,380 فٹ اوپر ان ڈیوٹی انجام دے رہے تھے۔ ان کی ڈیوٹی کا عرصہ تقریباً 13 ماہ 8 دن اور اسی دوران انہوں نے
8 मई सुबह के वक्त 4:45 पे या 4:35 पे जामे शहादत नोश फरमाया। हमारे बेटे को पाक आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा शौक़ था, जुनून की हद तक, और वो बड़ी मेहनत से अपने इन तमाम कोर्सेज़ के लिए जो भी पाक आर्मी ने और जो असाइनमेंट दिए उसने फ़ख्र के साथ उसे कबूल किया और अपने तमाम जितने भी उनके सीनियर लोग जो उनके सुपीरियर थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन सबको मुतमईन किया और अल्लाह को यही मंजूर था और अल्लाह ने उनको जामे शहादत नोश कराया। अभी उनका एक दोस्त उम्रे पर गया था, उससे भी इसने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जामे शहादत नोश करूं, और अल्लाह ने 8 मई 2023 को उसे कबूल किया। उसकी वजह से हम सब बलूचिस्तान वालों का जो फ़ख्र से सर उसने बुलंद किया है, हम सब की भी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको सब्र जमील भी अता फरमाए। मेरा उन तमाम नौजवानों के लिए, सब के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें, वहाँ अपनी खिदमत अंजाम दें, अपनी वतन के लिए, अपनी इस मट्टी के लिए, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जाएं PMA को ज्वाइन करें और मेहनत करें, उस मुल्क को अपनी जानों का नजराना पेश करें। ये मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। मसीही बिरादरी के रहनुमाओं ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि जो कौम दुश्मन 75 साल में ना कर सका वो शर पसंद अनासर ने एक दिन में कर दिया। उन्होंने अपील की कि ऐसे लोगों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। मसीही बिरादरी के रहनुमाओं ने बिशप आज़ाद मार्शल, सदर और मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जिना हाउस का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा कि 9 मई को मुल्क में जो कुछ हुआ उस पर पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के दिल अफसरदा हैं। उन्होंने कहा कि मसीही बिरादरी के लोगों ने पाकिस्तान के लिए अपना खून बहाया है, ये मुल्क हम सबका है। जो कुछ यहाँ पर हुआ वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान दुश्मनी का निशान है। यहाँ पर आकर देखकर और ज़्यादा दिल दुखता है, मायूसी होती है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार जो मजरूह हुआ है 9 मई को वो दोबारा वापस लौटे और ऐसे लोगों को सजा दी जाए ताकि किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो। सेनेटर कामरान माइकल, जेम्स इकबाल और बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस ने कहा कि आज हमें पुराना या नया पाकिस्तान नहीं, एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान आर्मी हमारे माथे का झूमर है। पाकिस्तान आर्मी की वजह से आज हम पाकिस्तान में पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा अफजल मकाम है उन शहदा का हमारी नज़रों में जो हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। हम सोते हैं और वो सरहदों पर जाग के पहरा देते हैं ताकि हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हम पाकिस्तान के साथ हैं और अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है, आर्मी पर हमला किया है, सब पर हमला किया है। वफ्द में शामिल दीगर लोगों ने कहा कि हमारी फौज बेवक्त अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना कर रही है। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं और शोहदा के खानदानों को सलाम पेश करते हैं। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के वफ्द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और जराव घिराव और दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मसम्मत की। वफ्द का कहना था कि सानिया 9 मई ने पूरी कौम को रंजीदा किया है। ये कौन थे जो अपने ही घर को आग लगा गए, पाकिस्तान का परचम जलाया, कायदे आज़म की तस्वीर नजरे आतिश करने के साथ साथ मस्जिद को भी ना छोड़ा, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करके मिसमार करने वाले और लवाहिकीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। वफ्द ने मुतालिबा किया कि जो भी तखरीबकार, उनके सहूलतकार और मास्टर माइंड्स मुलव्विस हैं उनको कड़ी सजाएं देकर इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा ऐसा सानिहा रूनमा ना हो। 9 मई के मरकजी शरपसंद उमर फारूक के वालिद ने बेटे की हरकत पर इजहार नदामत किया है। अपने वीडियो बयान में उन्होंने 9 मई की तखरीबकारी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन और फख्र हैं। मेरा नाम मोहम्मद साबर वल उमरदीन सानिया 9 मई 2023 को पेश आया। हम सब घर वाले इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मेरा बेटा उमर फारूक वल मोहम्मद साबर जो कि BA का तालिब इल्म है, इमरान खान और उसकी पार्टी PTI के कारकुनान ने मिलकर हमारे बच्चे को एहतजाज के लिए अपने साथ ले गए। इमरान खान के लिए अपने बेटे इस वक्त मुल्क से बाहर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे बेटे को वरगला कर एहतजाज में ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन और फ़ख्र है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।
इंसदार दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में गिरफ्तार खदीजा शाह को जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह करती है। जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर खदीजा शाह को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने पुलिस को मुकदमा चालान और मुलजिमा को 17 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की एडमिन जज अभर गुल ने केस पर समाअत की। इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत ने कसूर में तोड़ फोड़ करने और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में 26 मुलजिमान की कबल गिरफ्तारी जमानत में 13 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत ने तमाम मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद भुट्टर ने जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत की। मुलजिमान के खिलाफ थाना इलाहाबाद कसूर में मुकदमा दर्ज है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन के साथ सऊदी अरब में मुलाकात हुई है। सदर मुमलिकत फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। अपने ट्वीट में सदर मुमलिकत ने कहा कि बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन से मक्का मुकरमा, मिना और मदीना मुनव्वरा में अच्छी मुलाकातें रहीं। मेरे बचपन के दोस्त सलमान रहमान से भी 60 साल बाद मुलाकात हुई, जो रुकन पार्लियामेंट, काबीना में वज़ीर और मुशीर हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इंशाअल्लाह हमारे ताल्लुकात बेहतर होंगे। कायम मकाम सदर मोहम्मद सादिक संजरानी से सेनेटर दिनेश कुमार ने मुलाकात की। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कायम मकाम सदर मोहम्मद सादिक संजरानी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को वफाकी और सूबाई दारकूमतों में यादगार शोहदाए मिल्लत के क़याम के लिए ख़त लिखा है। ख़त में कहा गया है कि धरती के इस्तेहकाम और बका के लिए फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। शहदा हमारे मोहसिन हैं। पाकिस्तान में अमन अमान बहादुर शहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर वफाक समेत सूबाई दारुल हुकूमतों में यादगार शहदा के क़याम को यकीनी बनाए। शहदाए वतन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कोहलू शहर में रैली का इनेकाद किया गया। कबायली माहिदीन, शहदा के वर्सा और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए शुरका ने हाथ में बैनर्स, प्ले कार्ड्स और सब्ज़ डाली परचम उठा रखे थे। कोहलू शहर की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मुकर्ररीन ने कहा कि अमन की खातिर वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा हमारे मोहसिन हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत में नरेंद्र मोदी के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से हिंद यात्रा एक फौजी और फ़िरका वाराना यात्रा बन गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में कहा कि भारत में हिंदुत्व सियासत की उरूज के बाद से मकबूजा इलाके में हिंदू यात्रियों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। 2 माह तक जारी रहने वाली अमरनाथ यात्रा, जिसका आगाज़ 30 जून को हुआ था, कश्मीरी आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन गई है। हुर्रियत रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि सख्त पाबंदियों और तलाशी की मुसलसल कार्रवाइयों और जाम तलाशियों के अलावा यात्रा के जम्मू कश्मीर पर संगीन माहौलियाती असरात भी मुरतब होंगे। गुलाम अहमद गुलजार ने अफसोस का इजहार किया कि हिंदू यात्रियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई है, जबकि कश्मीरी मुसलमानों को मकबूजा इलाके की मरकजी ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात से भी महरूम रखा गया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में ट्रेड यूनियन मारूफ लीडर आन जहानी संपत प्रकाश की तारीफ करते हुए कहा कि वो कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ के एक निडर वकील थे। संपत प्रकाश, जिनका हफ्ते के रोज़ श्रीनगर में इंतकाल हो गया था, अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के मोदी के फैसले के भी सख्त नाक़िद थे। भारतीय फौज में डिसिप्लिन की बिगड़ती सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी। करप्शन, जिनसी जराइम और बदसलूकी के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। आसिफ रिजवान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। कौन से रूल के भारतीय फौज में नज़्मो ज़ब्त की बिगड़ती सूरत हाल ने बाला कमांडर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आए रोज डिसिप्लिन की बिगड़ती सूरत हाल की वजह गिरता मोराल, कम तनख्वाहें और अफसरान का जवानों के साथ हित्तक आमेज रवैया है। इन्हीं वजूहात के बाइस भारतीय फौज में बगावत का भी खदशा। सिर्फ साल 2022 में भारतीय अफवाज में 537 कोर्ट मार्शल और 6000 से जायद डिसिप्लिन के वाकयात पेश आए। 12,410 से जायद फौजी भगोड़े हुए और ड्यूटी से इनकार पर मुलाजमत से बर्खास्त किए गए। इससे कबल 2019 में BSF जवान तेज बहादुर को गैर मेरी खाने पर एतराज करने पर सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था। 2016 में सिपाही चंदू बाबू लाल भारतीय फौजी अफसरान के नारवा सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया। मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। किसी तरह वहाँ से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के
नया नहीं मिला, मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा। मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। जवान लाता है अपनी परेशानी से, लेकिन उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेस किया जाता है। घर में खाना बनाने के लिए जवान है, जूता पॉलिश करने के लिए जवान है, घर की सफाई करने के लिए जवान है। अगस्त 2019 में 8 बिहार रेजिमेंट के सिपाही मोहन चंद ने छुट्टी न मिलने पर कंपनी कमांडर मेजर अलेक्जेंडर को गोलियों से भून दिया और जुलाई 2017 में संतरी ड्यूटी लगाने पर 19 मद्रास रेजिमेंट के नायक काठी रिसान ने मेजर शेखर थापा को गोली मार दी। उनकी फैमिली अगर ब्यूटी पार्लर जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो उसको गाड़ी दी जा रही है, और एक जवान छुट्टी जा रहा है या घर पर कोई इमरजेंसी पड़ गई उधर छुट्टी जा रहा है तो उसको गाड़ी नहीं दी जा रही। बहुत से लोग तो कुत्ते घुमाने में ही लगे हुए हैं, वो भी अधिकारियों में। भारतीय फौज में जवानों के साथ नारवा सलूक के साथ साथ करप्शन भी अरूज पर है। आला अफसरान करप्शन की बहती गंगा में हाथ पवित्र करना नेक शगुन तस्वुर करते हैं। इसकी एक मिसाल मेजर जनरल मैथ्यूज हैं, जिन्होंने सितंबर 2022 में फौजी सामान की खरीदारी में करोड़ों का घपला किया। अगस्त 2022 में तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल और सूबेदार मेजर ने हद ही उस वक्त पार कर दी जब उन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के ठेकों से पूरा 50% ही बतौर रिश्वत मांग लिया। इसी तरह जुलाई 2022 में 10 भारतीय फौजी लाखों रुपए मालियत की सरकारी अद्वियात ब्लैक मार्केट में बेचते हुए पकड़े गए। भारतीय फौज में करप्शन के साथ इखलाकी जराइम भी शिद्दत से पाए जाते हैं, जिसकी एक मिसाल अप्रैल 2021 में श्रीनगर में पेश आने वाला एक अंतोनाक सानेहा है। इस अफसोसनाक वाकये में फौजी अफसर ने पुलिस कांस्टेबल के साथ मिलकर कमसिन बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया था। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। भारत की शोरशज़दा रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात के दौरान 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने बताया है कि फसादात के वाक़यात मुख्तलिफ अजला में पेश आए। मेती गांव के करीब देहातियों की तरफ से बनाए गए बंकर्स पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। कई इलाकों में शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। मुतासिरा इलाकों में 50,000 के करीब अफराद बेघर हो चुके हैं और रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हैं। रियासत के बेशतर हिस्सों में कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान कहते हैं IMF के साथ मुआहदे से माशी इस्तेहकाम और कीमतों में नुमाया कमी आएगी। कसूर के इलाके फूलनगर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। फूलनगर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत पाकिस्तान के लिए मुश्किल दौर था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को मुश्किलात से निकाल लिया है। उन्होंने कहा कि आइंदा बिजली के पैदावारी मंसूबे मुकामी वसाइल से लगाएंगे। पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम में 5,000 मेगावाट जो हैं उनका इजाफा किया है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो करोट का आज़ाद जम्मू कश्मीर में दरिया जेलम के ऊपर 720 मेगावाट का बिजली का मंसूबा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से चल रहा है। थर के सहरा में से जो कोयला निकलता है उसके 2000 मेगावाट इन पिछले 14 महीने में इस सिस्टम में आए हैं। इससे पहले बल्लोकी में 660 केवी मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन मंसूबे के कन्वर्टर स्टेशन पर तकरीब से खिताब में वज़ीर तवानाई ने कहा कि सीपैक की वजह से गुज़िश्ता 10 सालों में पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत हुई है। हमारे दोस्त मुल्क चीन की तरफ से पाकिस्तान के बेहतर मुआशी मुस्तकबिल में सरमायाकारी 2013 में पाकिस्तान इंतहाई मुश्किलात का शिकार था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की नई हुकूमत बनी थी, लेकिन उस वक्त लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, और हमारे कोई भी जो दूसरे बैन अल-अक़वामी पार्टनर्स हैं वो आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त चीन ने ये चैलेंज कबूल किया। 2018 से 22 के दरमियान चाइना पाकिस्तान के ताउन में एक तात्तुल लाया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 1 साल में दूर किया है। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से कराची, पोर्ट कासिम और थर के बिजली घरों से मुल्क के शुमाल में बिजली की तरसील में आसानी होगी। वज़ीर तवानाई ने बल्लोकी में मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन के कन्वर्टर हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। सीपैक के तवानाई के मंसूबे पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मुआवन साबित हो रहे हैं। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, बल्लोकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाज़रीन, मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है।
محکمہ موسمیات نے 8 جولائی تک ملک میں مونسون بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے مختلف شہروں میں سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ تفصیل بتائیں گی صدف افضل اپنی اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور وسطی پنجاب میں 8 جولائی تک موسلا دھار بارشوں یا یالہ باری کا امکان ہے۔ 5 سے 8 جولائی تک لسبیلا، ڈی آئی خان، ملتان سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ 7 اور 8 جولائی کو سکھر، جیکب آباد، ٹھٹھا، عمرکوٹ اور حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 4 سے 7 جولائی تک راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش سے اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے، جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے۔ فائدے یہ ہیں کہ یہ ہماری چاول کی فصل چونکہ آج کل کاشت ہو رہی ہے تو اس کے لیے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ریزروائر کے لیے بھی جو ہمارے منگلا اور تربیلا ان کے لیے بھی اس کی سپورٹ مل جائے گی۔ اور نقصانات میں یہ ہے کہ جی کہیں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے گی، اربن فلڈنگ ہوگی، فلیش فلڈنگ ہوگی، آندھی یا طوفان کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا یہ بجلی یا ان کے پولز جو ہیں نا وہ بھی گر سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور سیاحوں کو بارش کے دوران کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچنے کے لیے محتاط رہنے کی ہدایت کی ہے۔ آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش سے کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کسان بھی بارشوں کی صورتحال سے باخبر رہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں سے گرمی کا موجودہ زور تو ٹوٹے گا، تاہم مونسون کے دوران بھی موسم معمول سے گرم رہنے کی توقع ہے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پٹوار اور بالائی پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ اور ناظرین، اب آپ کو ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ نوکنڈی میں 48، دالبندین 46، سبی میں 45، فیصل آباد 42، جبکہ سرگودا میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ ایسے رہی: اسلام آباد میں 38، لاہور میں 39، کراچی 38، پشاور میں 40، جبکہ کوئٹہ میں بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں۔ موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سپورٹس بلیٹن میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوہ پیما نائلہ کیانی اور سمینہ بیگ کو ایک اور کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ نائلہ کیانی اور سمینہ بیگ نے دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت کو سر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے دونوں کوہ پیماؤں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد خطرناک ترین چوٹی ناگا پربت سر کرنے والی پہلی خواتین کوہ پیما سمینہ بیگ اور نائلہ کیانی نے ایک بار پھر پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا۔ دونوں نے ثابت کیا کہ ان کی ہمت، عزم اور ارادے بلند پہاڑوں سے بھی بلند ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے بھی سمینہ بیگ اور نائلہ کیانی کو اعزاز حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ سمینہ بیگ اور نائلہ کیانی قوم کو آپ پر فخر ہے۔ آپ پاکستانی خواتین کے عزم و ہمت کی علامت ہیں۔ کوہ پیمائی کی دنیا میں نئی تاریخ رقم 8 سالہ ایان شگری اور 12 سالہ دانش سدپارہ نے قصر گنگ چوٹی سر کر لی۔ دونوں ننھے کوہ پیماؤں نے مہم جوئی 25 جون کو شروع کی اور 19,365 فٹ بلند چوٹی سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیماؤں کا اعزاز اپنے نام کیا۔ دانش سدپارہ صادق سدپارہ کے بیٹے اور مرحوم کوہ پیما حسن سدپارہ کے بھتیجے ہیں۔ تھائی لینڈ میں 6ٹی ہیرو انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں پاکستانی بچوں کی شاندار کارکردگی، مجموعی طور پر 28 تمغے جیت لیے۔ چیمپئن شپ میں پاکستانی ٹیم 12 کھلاڑیوں پر مشتمل تھی، جس میں لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کا نام روشن کیا۔ پاکستان نے 4 گولڈ، 6 سلور اور 18 برونز میڈل اپنے نام کیے۔ کھلاڑیوں نے فائٹ اور پومسے کے علاوہ دیگر کیٹیگریز میں حصہ لیتے ہوئے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔
खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।